Uh, today's program today's program is basically a focus on the topic how to prepare for the interview and the PhD guidance. So it's very useful topic, and uh, I'm very much happy to share with you that Dr. Danga rightly said that around 135 participants registered for this program, and around 50 participants are there due to Diwali, maybe, or it's a post-lunch session, maybe other participants will join. That's a great achievement. And without uh, uh, one more thing, I would like to share that we are committed to conduct such type of programs in near future also. This is the PhD interview preparation and guidance program. We are also committed to conduct the MD, PG entrance program, and the other medical officer exams. So we need your support for this program, and even we are getting support from all of you. So without much delay, uh, I will hand over the mic to Dr. S.K. Danga for the further program. Yes, Thank thank you, you. doctor. Thank you, sir. Thank you for your opening remarks, sir. So now, without wasting time, we will move on this main program. Uh, my screen is visible, all of you. Please let me inform. Yeah. Yes, sir. Yeah. So today's main program is PhD guidance. Means we will focus in this program what is the interview process. Means how you can face the interview, and what is the protocol guideline. In simple way, we will also try to give the guideline regarding the protocol which will be used in the Datta Mega Institute of Medical Sciences for the PhD writing, PhD protocol writing or synopsis writing. So we will focus both things. Means how you can focus, or how face the interview, and how you can design your best protocol for the PhD, because the mainly interview will be focused on the PhD protocols. So what is the objective of today's program? To aware about the importance of PhD, and to orient the process of PhD interview, and to briefly introduce about the research proposal writing and synopsis development for the PhD course. So these are the objective after program. You might or must know about the what is the importance of PhD, and what process or what kind of interview will be will be have in coming days. Actually, it is on, I think, 15th of November. So this will be the schedule of this program. Means I will guide you on PhD interview process as well as the protocol. Dr. Dheeraj will guide on how to face the actual interview in the PhD, and Dr. Chetan will focus on study design for PhD in short. And after that, we will have question answer sessions. So what is the PhD? So you must know, or you might know, or you all aware about that. This is the highest qualification of any course, and this is a Doctor of Philosophy, a degree representing independent thinking capacity, a respectable level. As you all are the MD or MS, or some may be MPhil, and after that you are going to pursue the PhD. This is the highest academic qualification. And why should do PhD? It is the highest academic qualification. Sometimes it is a desirable or essential qualification in a renowned institute. For example, National Institute of Ayurveda, All India Institute of Ayurveda. If they are recruiting professor, dean, principal, or any higher post, associate professor, assistant professor, they are now asking as a sometimes desirable, or sometimes they are asking PhD as an essential qualification. That's why PhD is needed. And sometimes if you want to become MD or MS guide or PhD guide, you must have a PhD. If you are not holding PhD, then there is a quite less chances to become a PhD guide or FDMS guide. Sometimes in government or in other institution, there is a requirement of PhD for the purpose of increment or promotion, or on to promote as on a higher post. You need to have a PhD. If suppose you want to write a research proposal to for the funding or grant from the Central Council of Research in Arabic Sciences, or ICMR or WHO, you must have a PhD. Otherwise it will be have low impact if you are not a PhD. That's why PhD is important. For selection on higher post, I have already explained you. For NI institute like IPGTRA, NI, All India Institute of Ayurveda. For the government Arabic college academic post for a dean professor, you must be a PhD. Otherwise, it will add a additional weightage if you have a PhD. So that's why I needed to do PhD. And teaching experience.
for a full-time student, those who are student quota, after completion of their PhD, they will get the 2 years full-time research means teaching experience as per the new rule made by the NCISM. That's why also if they're not able to get properly lectureship job or for assistant professor, if they go into PhD, though, so the 2 year experience will be count as a teaching experience. And lastly, one wish to do PhD in their life. So someone want to the putting the word after their name, that MD, PhD, MS, PhD. एक इच्छा होती है लोगों की. So one wish to do PhD in their life, they must do PhD. And it also built a self confidence, self esteem. That's why you can do PhD. And why it is necessary. If you want to learn more, eager to learn, contribute to science, you must do PhD. If you are interested in research, want to build a higher qualification, strong resume, you want to have a job, a good job in the university, colleges, good institution, for increment, for promotion purpose, and if you have enough times, last is the one very important thing, and now nothing left to do, then you can go for the PhD. Who should not do the PhD? Means why PhD is not necessary for the particular peoples. Those who are well settled in practice, they are earning in lakh, 2 lakh, 3 lakh per month on. And some people, who are in actual position, they are a director, dean, principal of a college, professor in the government college. So they need not to do PhD. Otherwise, if they want to, they can do, but otherwise there is no necessity to do PhD by themselves. If you are in a permanent job at UG, otherwise particular UG college in the state or central government, because if you are, there is no PhD, though postgraduate course or PhD course, then there is no much value for the PhD qualification, because PhD caliber PhD candidate, to guide the MDMS or either the PhD, the professor must be PhD. And if you are suppose working in the UG college where there is no PG or PhD, so there is nothing value dying in PhD. And those who people not involved in the academic career, they also should not do the PhD. If even you are not interested in research, some people interested in a clinical field, or sometimes some people interested in management field, some people are interested in administrative field, so they need not to do PhD. Those who are having MPhil degree, it is also just equivalent to PhD. And those who are working as a professor in Ayurvedic colleges and already PhD guide also need not to do PhD. And those who are creative minds, they can create an idea. That idea can be even views in terms of creativity. So they also, the people who having that mind of creative ideas, need not to do PhD. And those people who sometimes people have the multiple responsibilities even at home, institute, society, such people should not do the PhD. And who are favorable for pursuing PhD? I already explained, researcher minded, no research methodology and medical statistics well, and those should people who have the good computer knowledge are the favorable for that. Expertise in English, at least writing, because writing a protocol, writing synopsis, writing research and the publication of the paper need the expertise in English. Logical thinker, interpretative knowledge in their specialty particularly, and able to do multiple studies and publication. Generally the people having this quality are most favorable or more favorable for pursuing the PhD. And wish to continuous learning, those people, sometimes people hesitate to learn after graduation also. They just complete BMS and they set the practice and just not, because they don't want to learn further. So those having the willing of the continuous learning, they can join PhD. And if you are not fitting in those criteria, no need to fit, because sometimes if you get the guide is familiar with you, and sometimes university policy relaxation and thesis evaluation process, evaluator topic selection, sometimes you can take the expert addition, some these hurdles you can manage with these things. If suppose you will get the good guide and the university policy. But recently university also accepting the university grant commission policy, so the guideline has been changed now. And these are the hurdles in doing PhD.
selection of the topic is a very critical and complex things. It takes times and also stressful situation during the selection of topic, and sometimes guide. If suppose the guide is familiar with him, then no problem. If this guide is not familiar and strict in nature, then you may get trouble for starting from the selection of topic to the end of the your protocol. And recently UGC has recommended the research examination for the those who are doing the PhD since 2019. That is also hurdles. And there is a coursework training program for 15 days, which is particularly also recommended by the UGC, and all universities are following this. So coursework training, and you also need to do complete advanced research methodology course for 6 days or more than that duration. And sometimes the traveling, if center is away from your place or your college, it requires time and money also. So these are the some hurdles while doing the PhD. Sometimes inability to study due to family, job, practice, and sometimes no will of particular individual. That will be also one type of hurdles. And those people who are weak in research or having less interest in publication, writing papers, may become a hurdle to complete the PhD in a proper and appropriate timing. Strict criteria publication. Sometimes what happens, those who are doing the PhD in the universities, they must publish at least 2 paper in PubMed or Scopus or UGC approved journals. And, that is also very critical things, or sometimes very struggling things to get published the paper in these journals. And the research study level and cost also matter. And whenever you go to the interview, you must have the documents you ready in your hand. Actually, Datta Megi is conducting virtual interview, so no need to show these document, but sometimes they may ask the documentary formality. So you have to prepare all these documents: national research certificate, SSC maintained certificate, that is for a proof of age, or 10+2 certificate, HSC certificate, UG degree certificate, PG degree certificate, college living certificate, registration certificate from central or state council. If you are in reservation, then you must have caste and caste validity certificate if asked by the institution. Suppose they are asking non-criminal certificate, I think it is maybe it is only applicable in the Maharashtra. If you are claiming the physical handicap reservation, then you must have to submit the certificate also. And along with this document, one document, that is a NOC, no objection certificate from your concerned institute, is must requirement for the admission of the PhD. And if any other document, relevant document required, then you must have to keep in your hand all these documents. So thank you. This is just over a brief of what is PhD, what is importance, and how you can prepare for the PhD. So now another that is important point I will discuss, the DRC presentations. Okay, so what is the protocol exactly followed by the Datta Megi Institute of Medical Sciences?
I think from my side there is some problem, network problem. So I request Dr. Dheeraj Singh Rajput to start his lecture on how to face the interview. Dr. Dheeraj Singh Rajput, are you online? एक मिनट Yes, स्क्रीन yes. दिख रही है क्या, चेक कर लेते? Yes, yes, मैसेज yes. में बताइए. Yes, yes. Screen is visible now. So after your lecture, I will, join this. स्क्रीन विजिबल है क्या? मैसेज में आंसर देता है. Yes, yes, yes. साउंड आ रहा है क्लियर? Yes, yes. ओके, फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. Yes. हाँ, सभी को वेलकम पीएचडी प्रोग्राम के लिए. जिनका सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है, उनको कांग्रेचुलेशन और इंटरव्यू के लिए ऑल दी बेस्ट. अभी अपन देखने वाले हैं हाउ टू फेस इंटरव्यू. आप में से काफी लोगों ने इससे पहले भी इंटरव्यू दिए होंगे और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कोई भी बात करने से पहले, चाहे वो रिपीटेशन क्यों ना हो, उस बात के बारे में थोड़ा पता कर लेना और अंडरस्टैंडिंग डीप कर लेना हमेशा अच्छा होता है. इस हिसाब से अभी अपन डीएमआईएमएस में होने वाले इंटरव्यू के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे. तो पहले इंटरव्यू क्या है, इसका शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देखते हैं. Interview is a meeting at which a person is asked a question to find out if she is suitable for a job, course of study, etc. यहाँ पे टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मीटिंग और सुटेबिलिटी. मीटिंग मीन्स a team with one or more subject expert. इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए. क्योंकि इंस्टीट्यूट कंप्लीटली आयुर्वेद होंगी तो एक्सपर्ट भी आयुर्वेद टीम के आएंगे और मेंबर्स भी आयुर्वेद टीम के रहेंगे, ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट मल्टी डिसिप्लिनरी है जैसे डीएमआईएमएस, बीएचयू, तो वहाँ पे सब्जेक्ट मेंबर मॉडर्न के भी रहते हैं. तो आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से करना पड़ता है कि आयुर्वेद को मॉडर्न में एक्सप्रेस करते आना चाहिए, तब आप सब्जेक्ट मेंबर का अटेंशन अट्रैक्ट कर पाएंगे. सेकंड पॉइंट है सुटेबिलिटी. आपने एग्जाम क्लियर कर दिया है, इसका मतलब आपका लिटरेचर नॉलेज ठीक है, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, मिस बाकी से आप स्कोर में आ गए, आपकी एक एकेडमिक सुटेबिलिटी प्रूफ हो चुकी है. लेकिन एकेडमिक सुटेबिलिटी और सोशल कॉमन सेंस दोनों में फर्क रहता है. आपको जो कुछ पता है वो आप शब्दों में एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, ये रिटन एग्जाम से पता नहीं चलता है. और ये पता करने के लिए इंटरव्यू होता है. मीन्स आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस वर्बल नॉट रिटन, और स्किल्स. मीन्स इंटरव्यू में आपको लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपकी स्किल टेस्ट की जाएंगी. इस परफॉर्मेंस और स्किल पे आपकी सुटेबिलिटी डिसाइड होती है. तो सुटेबिलिटी के लिए इंटरव्यू ये मेन है. अब बहुत से लोगों को इंटरव्यू बोला तो डर लगता है, इंटरव्यू का एक फोबिया होता है. इसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन ये है कि इंटरव्यू में न्यू लोग होते हैं और वो न्यू लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं, कुछ लेवल रहती है उनके टैलेंट की या कुछ अथॉरिटी लेवल रहती है. अपने दिल में या अपने ब्रेन में सबकॉन्शियस लेयर में उस अथॉरिटी का एक फियर होता है, इसलिए अपने को इंटरव्यू से डर लगता है. जिन लोगों को स्टेज पे जाने पे डर लगता हो उनको इंटरव्यू का भी डर लगता है. इसलिए इंटरव्यू फोबिया फर्स्ट दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप में इंटरव्यू का डर है तो आप ठीक से आंसर नहीं दे पाएंगे. ये जो फियर है अंदर का, ये फियर आपका नॉलेज एक्सप्रेशन में हर्डल आएगा, आपका नॉलेज एक्सप्रेशन में ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से आपको नॉलेज होते हुए भी आप उसे वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. इसलिए फर्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन से पहले इंटरव्यू फोबिया दूर करना है, और इसके लिए आपको आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा. इसके लिए कुछ पॉइंट के बारे में सोचिए. फर्स्ट पॉइंट, यू आर नॉट क्रिमिनल एंड द कमिटी इज नॉट पुलिस.
आपने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है और आपको कुछ पुलिस स्टेशन में बुलाया नहीं है जैसे, इसलिए डरने का क्यों? सेकंड, यू आर नॉट किडनैपर एंड कमिटी इज नॉट गैंगस्टर। वो कोई गैंगस्टर नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपने ठीक से आंसर नहीं दिया है, इम्प्रॉपर आंसर देते हैं तो आपको मारेंगे या पीटेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यू आर नॉट फूड एंड कमिटी विल नॉट ईट यू। अपन कोई खाना नहीं कि कमिटी अपने को खा जाएगी। एक बार मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था गुजरात में, तब मेरा ये सेकंड या थर्ड इंटरव्यू होगा। मुझे इंटरव्यू का डर लग रहा था और मैंने ये दोस्त को बताया कि मुझे इंटरव्यू का डर लगता है। मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा था, टैलेंटेड था। उसने मुझे कहा कि इंटरव्यू में जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे? मैंने कहा वो मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो बोले तो क्यों डरते हो? मैंने कहा है कि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है और मेरा करंट जॉब कम सैलरी का है। अगर मुझे वो जॉब नहीं मिला तो दिल में डर लगता है और वो जॉब नहीं मिलने की वजह इंटरव्यू रहेगी। तो मेरा दोस्त बोले कि अभी तुम्हें कितना सैलरी है? मेरी फर्स्ट जॉब में मुझे 20 के सैलरी थी। तो दोस्त ने कहा कि तुम्हें 20 के सैलरी है, इंडिया के 50% लोगों को 10 के तक सैलरी है और वैसे भी बोले तुम खुद के पैरों पे खड़े हो, खुद कमा रहे हो, कहीं भीख नहीं मांग रहे हो। खुद में विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, अपनी इमेज अपनी नजर में ऊपर चाहिए, सामने कौन है इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, तब जाके बोले अपन अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं। तब उसने ये भी बताया कि इंटरव्यू वाले तुम्हें खाने ही लेंगे, इसलिए आपको भी बता रहे हैं अगर इंटरव्यू फोबिया है तो इसमें के कुछ पॉइंट सोचो। इंटरव्यू में के लोग सिंसियर लोग होते हैं, वो अपने को सिंपल ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो टैलेंटेड होंगे, न्यू होंगे, लेकिन ध्यान में रखो कि हर एक पर्सनैलिटी न्यू होती है। आप जैसा दूसरा कोई पूरी दुनिया में नहीं है, हर कोई स्पेशल होता है। इसीलिए किसी से डरने की या किसी को स्पेशल सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, यू आर नॉट देयर सर्वेंट एंड कमिटी विल नॉट डिसमिस यू। आप उनके जॉब अंडर जॉब नहीं करते हो और वो आपको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। डोंट गेट डिप्रेशन, डोंट गेट डिप्रेशन विथ इमोशन। अपने इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं और उसकी वजह से अपन डिप्रेस होते हैं। इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए तो इंटरव्यू फोबिया कम होगा। इवॉल्व मत होइए, ना फियर से, ना खुशी से, ना ओवर कॉन्फिडेंस से। जैसे आप सिंपली फ्रेंड के साथ रहते हो, सेम वैसे ही रहिए। फ्रेंड के साथ रहते टाइम अपन इमोशन से इन्वॉल्व नहीं करते। प्रिपेयर वेल एंड गो अहेड विथ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। तो अपने को प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू का, तो कुछ स्टेप्स है। कुछ स्टेप आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिए है, कुछ स्टेप ट्रेनिंग के सारे गाइडेंस के सारे क्लियर हो चुके हैं और कुछ बाकी है। जैसे अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएचडी। कोई भी इंटरव्यू को जाने से पहले वो इंटरव्यू जिस सब्जेक्ट रिलेटेड है उस सब्जेक्ट से या उस डिग्री से या उस जॉब से आपकी फैमिलियरिटी चाहिए। आपकी फैमिलियरिटी मीन्स वो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस उस जॉब के उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से रहेंगे। आप पीएचडी डिग्री के लिए जा रहे हो और पीएचडी का मीनिंग होता है डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। इसमें फिलोसॉफी वर्ड आया है और फिलोसॉफी का मीनिंग लॉजिक एक्सपीरियंस के सहारे एक्सप्रेस करते आना। फिलोसॉफी का मीनिंग इतना नहीं है कि हाई रिसर्च करता है और अच्छा रिसर्च लिखता है। फिलोसॉफी मीन्स एक्सप्रेशन स्किल भी हाई है। यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन स्किल देखेंगे क्योंकि ये पीएचडी का इंटरव्यू है और पीएचडी का इंटरव्यू रहने से आपकी वर्ड अरेंजमेंट, आपके कहने का तरीका, आपके सब्जेक्ट एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी और उस एक्सप्लेनेशन में आया हुआ डिटेल इतना बेटर इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जो कुछ बोलेंगे वो सिक्वेंशियली बोलना होगा और कंप्लीटनेस और क्लियर बताना होगा, तो आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा। सेकंड पॉइंट है इलिजिबिलिटी। तो अगर आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आ चुका है तो इसका मतलब आप एलिजिबल है ही, बस आपको सुटेबिलिटी स्टेब्लिश करनी है उनके सामने। वी विल डिस्कस, 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं इसलिए अपन बचे हुए 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नो अबाउट द कमिटी,
यहाँ पे आप DMIMS के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इसलिए कमिटी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे, इंटरव्यू की कमिटी के बारे में। प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन। नो अबाउट द इंटरव्यू कमिटी। DMIMS ये मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेंटल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, MBBS और आयुर्वेद कॉलेज इतना सब कुछ आता है। इसलिए DMIMS में जो मोस्ट मैनेजमेंट के मेंबर्स है जो हाई अथॉरिटी होल्ड करते हैं वो MBBS के है। इसलिए मोस्ट मेंबर इंटरव्यू में भी PhD के MBBS के रहते हैं। ओनली वन सब्जेक्ट एक्सपर्ट इज फ्रॉम आयुर्वेद। जैसे आपका द्रव्य गुण का इंटरव्यू है तो एक द्रव्य गुण का सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा, रस शास्त्र का है तो एक रस शास्त्र का सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ऐसा एक एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट। पर ध्यान में रखो कि मोस्ट अथॉरिटी जिसमें पावर है वो MBBS की है, और MBBS की रहने की वजह से उनको मॉडर्न एक्सपेक्टेड है। आप पूरा आयुर्वेद में बताएंगे, उनको आयुर्वेद समझ में नहीं आता है, इसलिए उनको लगेगा कि इसे कुछ नहीं आता है, इसलिए आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो मेरिट में आगे है उनको ही वो ले लेंगे। अगर आप मेरिट में पीछे होते हुए आपको आगे जाना है इंटरव्यू में, तो आपको आपका नॉलेज मॉडर्न के हिसाब से और नॉन आयुर्वेदा पर्सन अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इस तरह से एक्सप्रेस करना होगा। और अगर इस तरह से आपको नॉलेज एक्सप्रेस करना है तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करना होगा। आगे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आपको मॉडर्न में आंसर बना के रखना पड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ये MBBS वालों की कुछ एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन, हैव मॉडर्न एस्पेक्ट टुवर्ड्स आयुर्वेदा एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में होने वाली रिसर्च भी और आयुर्वेदिक पॉइंट के भी, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, या फिर आयुर्वेद का कोई डिसीज मैनेजमेंट कंसेप्ट, जैसे नस्य देना पैरालिसिस की कंडीशन में आप बता देंगे कि नासा ही शीर्षोद्वारम, उनको उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं कि नोज में नेसल सेप्टम रहता है और नेसल सेप्टम ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग के लिए परमेएबल है और ब्रेन तक वही ड्रग पहुंचते हैं जो लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए अगर नोज से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ब्रेन तक जल्दी पहुंचते हैं और ब्रेन में इफेक्ट होते हैं और ब्रेन के डैमेज एरिया को ठीक कर सकते हैं। इस तरह आयुर्वेदिक ड्रग पैरालिसिस जैसे कंडीशन में एक्ट होती है तो उनके समझ में आएगा। इसलिए अपने कंसेप्ट मॉडर्न में एक्सप्रेस करने का प्रिपरेशन करना होगा। सेकंड एक्सपेक्टेशन है पब्लिकेशंस। आपके अगर कोई पब्लिकेशन है इंटरनेशनल जर्नल में या बुक पब्लिकेशन है तो आपको इंटरव्यू में फेवर मिलेगा, क्योंकि ये DMIMS ऑर्गेनाइजेशन NAACA पॉजिटिव एक्रेडिएटेड है और इन एक्रेडिएशन को कायम रखने के लिए उनको इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशंस लगते हैं। अगर आए हुए स्कॉलर्स पब्लिकेशन से फैमिलियर है तो आगे चल के पब्लिकेशन कर पाएंगे और उसका बेनिफिट DMIMS को मिलेगा एक्रेडिएशन में। इसलिए अगर आपके पब्लिकेशन है तो आपके इंटरव्यू में फेवर बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट है इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस एंड इम्प्रेसिव रिसर्च टॉपिक। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं है, आप हिंदी बोल सकते हैं या अंग्रेजी बोल सकते हो। इंग्लिश में बात किया तो और भी अच्छा, लेकिन अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आता है तो हिंदी में बताइए। लेकिन आपका वर्ड टू वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस और उनका एक्सप्रेशन और सेंटेंस की क्लैरिटी सब कुछ क्लियर रखिए। इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव बनेगा। और सेकंड पॉइंट है इम्प्रेसिव रिसर्च टॉपिक। PhD में आपको एक रिसर्च टॉपिक लेना है और इंटरव्यू में पॉसिबली आपको रिसर्च टॉपिक पूछा जाएगा और वही रिसर्च टॉपिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसलिए आपका टॉपिक इम्प्रेसिव चाहिए जो उनका अटेंशन अट्रैक्ट करे। प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चंस, रेयरली ऑन एकेडमिक सिलेबस। आपने एक्चुअली एकेडमिक सिलेबस रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपको एकेडमिक सिलेबस पे क्वेश्चंस पूछेंगे ऐसा नहीं है। रेयरली कोई क्वेश्चंस, हार्डली 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं एकेडमिक पे, क्योंकि ये PhD इंटरव्यू है और दिस इज नॉट एन इंटरव्यू फॉर लेक्चरर जॉब। आपको लेक्चरर करके सिलेक्ट नहीं करना है उनको इंस्टीट्यूट में,
इसलिए वो आपका एकेडमिक नॉलेज नहीं देखना चाहते, वो आपका रिसर्च नॉलेज देखना चाहते हैं। इसलिए रिसर्च रिलेटेड और एमडी और पीएचडी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। रिसर्च में जो आपका एक्सपीरियंस है और उसके एक्सपीरियंस से और उस रिसर्च के टाइप से रिलेटेड आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है, उस लॉजिकल थिंकिंग को यहाँ इवेल्युएट किया जाएगा। मीन्स आपका जैसे टॉपिक होगा या एक्सपीरियंस आप जैसे बताएंगे, क्वेश्चन उस हिसाब से फ्रेम किए जाएंगे। क्वेश्चंस का कोई क्लियर फॉर्मेट नहीं है। वहाँ पे DMIMS में 2 तरह के इंटरव्यू फॉर्मेट यूटिलाइज किए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉर्मेट और सेकंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे। और सेकंड फोकस ग्रुप डिस्कशन, इसमें आप जो आंसर देते हैं उस पे क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चंस क्या होंगे ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपको वो खुद डिसाइड करना है कि आपके आंसर क्या रहेंगे और उस पे क्या पूछा जा सकता है। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो एमडी रिसर्च रिलेटेड एक्सपीरियंस है आपको, मिस कंफर्म एमडी रिसर्च रिलेटेड टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। और सेकंड लॉजिक, लॉजिक मीन्स आप पीएचडी में क्या करना चाहते हैं, ये यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, इसलिए आपके पीएचडी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपनी इंट्रोडक्शन क्लियर होनी चाहिए और उसमें अपना डिटेल आना चाहिए। एमडी कहाँ से किया, एमडी रिसर्च टॉपिक कौन सा था, ये भी बताना चाहिए। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अवॉइड कर दो, जैसे रेसिडेंशियल आप कहाँ के हो या आपने कितने स्टूडेंट को गाइडेंस किया है, अगर समझो टीचिंग जॉब में होगे तो। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अवॉइड करके शॉर्ट में लेकिन इम्पोर्टेंट वाला इंटरव्यू इंट्रोडक्शन आपको कराना होगा। जैसे मेरे इंट्रोडक्शन पूछा तो मैं बताऊंगा कि माय कंप्लीट नेम इज धीरज सिंह सुमेर सिंह राजपूत, आई एम graduated from Sri Gurudev Ayurved College Muzri, post graduated from Government Ayurveda College Nanded in the subject Ras Shastra and completed PhD from Gujarat Ayurved University Jamnagar. My MD topic was, टॉपिक का टाइटल बताएंगे, my PhD topic was, टॉपिक का टाइटल बताएंगे। I have published 82 papers in international journal and 7 papers in national journals. I have one book publication and I am highly interested in animal research and drug development research. बस इतने में ही आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगी। इसमें नेसेसरी उतने ऑल इंफॉर्मेशन आ गए। ऐसी सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट में ब्रीफ में प्रिपेयर करनी होगी। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज योर एमडी रिसर्च वर्क। यहाँ पे आपको आपका एमडी रिसर्च वर्क टॉपिक बताना है, लेकिन अगर आपका टॉपिक बताने के बाद में भी कमिटी साइलेंट रहती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दो। उस टॉपिक का एम क्या था, उस टॉपिक की मेथोडोलॉजी क्या थी, मेन रिजल्ट क्या था, आप अपना कंटिन्यू चलने दो स्लोली। लेकिन अगर आपका एमडी रिसर्च टॉपिक बताने के बाद में कमिटी क्वेश्चन पूछती है तो टॉपिक एक्सप्लेन मत करो। अगर कमिटी एक्सपेक्ट करती है कि आप टॉपिक एक्सप्लेन करें, तो आपने टॉपिक टाइटल बताने के बाद में कोई कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ी देर साइलेंट रहेगी, और ये साइलेंट की ड्यूरेशन एटलीस्ट 5 to 10 सेकंड की रह सकती है। इसलिए आपको कंटिन्यू कर देना पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर डिपेंड रहेगा। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन योर एमडी रिसर्च वर्क। अगर आप टॉपिक बता के रुक गए और तभी किसी ने क्वेश्चन किया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका टॉपिक एक्सप्लेन करो। या फिर वो पूछ सकते हैं, व्हाट आर कंट्रीब्यूशन इम्प्लीकेशन ऑफ योर एमडी रिसर्च। यहाँ पे एमडी रिसर्च वर्क का कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ है, साइंस में सोसाइटी के लिए बेनिफिट, साइंस के लिए और सोसाइटी के लिए आपके स्टडी से क्या प्रूफ हुआ, रिजल्ट क्या था, ये नहीं पूछा है। स्टडी का सिग्निफिकेंस पूछा है, स्टडी रिजल्ट नहीं पूछा है, ये डिफरेंस है। बहुत सारे लोग स्टडी कंट्रीब्यूशन पूछा है कि उसमें स्टडी के रिजल्ट ही बताते हैं। स्टडी रिजल्ट और कंट्रीब्यूशन अलग होता है। स्टडी का कंट्रीब्यूशन करंट नीड के हिसाब से होता है, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
जैसे मेरा एमडी रिसर्च वर्क में मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था भस्म बनाने का, और उसमें बनाया हुआ भस्म ट्रेडिशनल मेथड से चेक किया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हुआ कि ट्रेडिशनल मेथड में टाइम बहुत लगता है, कॉस्ट बहुत आती है और पोल्यूशन होता है। मैंने पोल्यूशन न होने वाला और जल्दी से यूटिलाइज किए जाने वाला कम स्पेस में, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम और मेडिसिन प्रोडक्शन फास्ट और हाई, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ऐसा मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ। ऐसा आपका कंट्रीब्यूशन आपको प्रिपेयर करना होगा। व्हाट इज स्पेशल नोवेल अबाउट द टॉपिक, आपके टॉपिक की खास बात क्या है या नया क्या है, मीन्स आपका टॉपिक बाकी से अलग क्या है, बाकी से अलग कैसे हुआ। जैसे मैं बता सकता हूँ कि आजकल इलेक्ट्रिक मफल फर्नास है और इलेक्ट्रिक मफल फर्नास की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सभी बसों की स्टडी इलेक्ट्रिक मफल फर्नास में होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक मफल फर्नास स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर या सिंगल प्रैक्टिशनर के लिए यूजफुल नहीं है। मेरा इंस्ट्रूमेंट उनके लिए यूजफुल है और वो इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन मैंने किया है। ये मेरे टॉपिक का नोवेल पॉइंट है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट पहले किसी ने नहीं बनाया है। मीन्स आपका टॉपिक बाकी से अलग कैसा है और उसका कंट्रीब्यूशन स्मॉल, डिटेल नहीं, ये दोनों पॉइंट आपको नोवेल्टी में बताने होगी। नोवेल्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं DMIMS में। अगर आपका टॉपिक जैसा सिमिलर टॉपिक रिपीट हो चुका है तो वो उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। इसलिए आपका टॉपिक आपके सिमिलर टॉपिक से अलग कैसा था, ये आपको सोच के रखना पड़ेगा। What are the research you have done so far? बाकी रिसर्च क्या की है आपने MD रिसर्च के अलावा? यहाँ पे आप आपकी बाकी रिसर्च बता सकते हैं। पर्सनल कोई केस स्टडी की होगी या स्टूडेंट को गाइडेंस किया होगा या कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट किया होगा एकेडमिक में स्टूडेंट क्या है तो, या आपने अंडर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू होगा या आपके इंस्टीट्यूट में कोई आयुष का प्रोजेक्ट शुरू होगा, आप उसमें पार्ट होंगे तो वो सब प्रोजेक्ट आप बता सकते हो। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपने EMD में क्लिनिकल रिसर्च किया हुआ है तो आपको क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने सैंपलिंग कैसी किया, सैंपलिंग मेथड कौन सी थी, सैंपल कैलकुलेशन कैसे किया, उतना ही सैंपल कैलकुलेशन कैसे आया, ऐसे क्वेश्चंस आपके रिसर्च टॉपिक रिलेटेड रहेंगे। अगर आपकी स्टडी एनालिटिकल है तो वो पूछ सकते हैं कि एनालिसिस में और कौन सी टाइप है, यही एनालिसिस क्यों किया, SPTLC का इम्पोर्टेंस क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है। मीन्स आपके रिसर्च टॉपिक में जो टेस्ट आती है या जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक का पार्ट आता है MD रिसर्च वर्क में, उसी से रिलेटेड रिसर्च के क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसलिए आपकी MD रिसर्च वर्क में आपने जो रिसर्च टाइप मेथड यूटिलाइज की, जो स्टैट यूटिलाइज किया, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, वन वे अनोवा, उनके बारे में भी पढ़ के रखो, उस पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हुए एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस। अब लॉजिक रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट टॉपिक यू विल बी अंडरटेकिंग फॉर रिसर्च ड्यूरिंग PhD, आपको PhD इंटरव्यू के लिए जाते टाइम एक टॉपिक के बारे में सोच के जाना है। अगर आप 2 टॉपिक के लिए प्रिपेयर करके जाते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो हो सकता है कि एक टॉपिक को इम्पॉसिबल बोल दे और वो कहते हैं कि ये टॉपिक पॉसिबल नहीं है तो तुम क्या करोगे। ऐसे में आप सेकंड टॉपिक बता सकते हो। इसलिए आप जितना प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा। टॉपिक बताने के बाद में उसी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपका टॉपिक क्लिनिकल है तो क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सैंपलिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सैंपल सिलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे, डेमोग्राफी, डिसीज का इम्पोर्टेंस, उसमें यूटिलाइज किए जाने वाले सब्जेक्टिव पैरामीटर्स, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन से अप्लाई करेंगे, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन, एप्लीकेबल एस्पेक्ट, बेनिफिट, जो आपका PhD रिसर्च वर्क है उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेबल एस्पेक्ट क्या होगी। इम्प्लीकेशन मीन्स सोसाइटी पे इम्पैक्ट, मीन्स कुछ तो भी नया चेंज, और एप्लीकेबल एस्पेक्ट मीन्स एक्चुअल यूज। इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन में फर्क है। इम्प्लीकेशन ब्रॉड रहता है और एप्लीकेशन स्पेसिफिक रहते हैं।
इम्प्लीकेशन मीन्स जैसे आपने कोई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग ली है, तो आप बता सकते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, हाइपरटेंशन, इन सब में आपकी ड्रग्स कोलेस्टेरॉल कम करने के लिए, लिपिड कम करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपका इम्प्लीकेशन हुआ। और एप्लीकेशन क्या हुआ, आपने आपकी ड्रग ओबेसिटी में स्टडी करने का टॉपिक लिया है, तो आप बताएंगे कि ओबेसिटी मिनिमाइज करने के लिए या ओबेस पर्सन में कोलेस्टेरॉल कम करने के लिए आपकी ड्रग एप्लीकेबल रहेगी। बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस नियरली सेम है, वो वर्ड अरेंज कर सकते, कोई बेनिफिट पूछ सकता, कोई एप्लीकेबल एस्पेक्ट पूछ सकता है। व्हाट इज नोवेल इन दैट टॉपिक, आपके पीएचडी टॉपिक में नया क्या है। आपके पीएचडी टॉपिक जो होगा उससे सिमिलर 2-3 टॉपिक पता कीजिए, सर्च कीजिए, और उन 2-3 टॉपिक को आप इंटरव्यू में बताइए कि पहले ऐसा ऐसा रिसर्च हुआ है और इसी रिसर्च में ये नहीं हुआ है जो मैं करने जा रहा हूँ। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च वर्क। व्हाई दिस टॉपिक, यही टॉपिक क्यों। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, आपको इस टॉपिक में क्या इंटरेस्ट है कि आप यही टॉपिक ले रहे हो। बहुत सारे स्कॉलर इस पे जवाब देते हैं कि ग्रंथ में ऐसा ऐसा रेफरेंस है लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ है। डीएमआईएमएस में ये रीजन एक्सेप्टेबल नहीं है। खास करके डीएमआईएमएस की सिलेक्शन टीम में मेन अथॉरिटी रहती है वेद प्रकाश मिश्रा सर की, और वेद प्रकाश मिश्रा सर को रेफरेंस वाला आंसर बिल्कुल पसंद नहीं है। ग्रंथों में है इसलिए ले रहे हैं तो उनको गुस्सा आता है। ग्रंथों में तो बहुत कुछ है, इसका मतलब आप सब कुछ ले सकते हो ऐसा थोड़ी है, ऐसा वो बोलते हैं मिश्रा सर। मिश्रा सर का कहना है कि टॉपिक लेने के लिए आपका इंटरेस्ट चाहिए, आपकी आत्मा क्या बोल रही है, क्या जरूरत है, आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, आपका सेल्फिश रीजन क्या है, वो आना चाहिए बोलते। ग्रंथ में नहीं है, ग्रंथ में रिसर्च कम हुई है या ग्रंथ में रिसर्च एब्सेंट है, ये रीजन उनको एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए आप खुद सोचिए कि आप वो रिसर्च टॉपिक क्यों ले रहे हो। चाहे तो किसी से डिस्कस करके वो पॉइंट पता कीजिए। जैसे मैंने एमडी में इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, क्यों डेवलप किया, क्योंकि मैंने देखा है प्राइवेट फिजिशियंस प्राइवेट प्रैक्टिस में फर्नास खरीद नहीं कर सकते और फूड देने के लिए पोल्यूशन होता है, उनका क्लिनिक सिटी में बीच में रहता है, ऐसे में पोल्यूशन कंफर्टेबल नहीं है, तो बिना पोल्यूशन के कम जगह में उन्हें भस्म बनाते आना चाहिए, क्योंकि भस्म यूटिलाइज किए जाते हो, भस्मों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट सोच के उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मार्केटिंग के हिसाब से मैंने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया। ये मेरा इंटरेस्टेड पार्ट हुआ, इससे ग्रंथ का कुछ नहीं आया। ऐसा आपके टॉपिक रिलेटेड रीजन जो एप्लीकेबल है, सोसाइटी के लिए यूजफुल है, ऐसा कुछ तो भी रीजन आपको बताना पड़ेगा, कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन रिसर्च गैप इन रिलेशन टू योर टॉपिक। रिसर्च गैप मीन्स what was previously existed, what was previously done, what was remained, and what are you going to fill that remaining portion। पहले क्या बाकी रह गया है और आपकी रिसर्च उसे कैसे कनेक्ट करके कंप्लीट करेगी। जैसे ग्रंथों में बोला है कि नशे से दवा देने से शिरोरोग ठीक होते हैं, नासा ही शीर्षोदारम में। कुछ रिसर्च हुए हैं जिनमें पैरालिसिस में नशे की स्टडी की गई है, लेकिन नशे की स्टडी मेमोरी इनहेंसिंग के लिए किसी ने नहीं की। मेमोरी इनहेंसिंग के लिए सबलिंगुअल ड्रग देते हैं या मेद्य रसायन देते हैं या अवलेह देते हैं, लेकिन किसी ने समझो घी बना है ओरली दिया है लेकिन वो नासा से नहीं दिया है, या नासा से दिया होगा लेकिन शिरोधारा के साथ नहीं दिया होगा। अगर मेद्य तेल बना के उसकी शिरोधारा और वैसा ही नशे से दे तो इफिकेसी डबल हो सकती है, क्लिनिकल क्यूर की ड्यूरेशन हाफ हो सकती है, इसलिए पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है। और मेरी रिसर्च में वो किया जाएगा, इसलिए मेरी रिसर्च पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के हिसाब से और पेशेंट की क्यूर की ड्यूरेशन कम करने के हिसाब से मैंने ये टॉपिक लिया है। ऐसा आपको रिसर्च गैप बताना पड़ेगा।
which parameter statistical test will be applicable for that topic. आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट पता करके रखना पड़ेंगे और वही एप्लीकेबल है वही यूटिलाइज करना पड़ेंगे, लेकिन थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ बताना पड़ेंगे। जैसे आपकी स्टडी में आपको मिनिमम 2 ग्रुप रखने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट कंपैरिजन के लिए सेम ग्रुप में हम पेयर टी टेस्ट लगाएंगे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के लिए, और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के लिए विल्कोसोन टेस्ट लगाएंगे, और 2 ग्रुप कंपैरिजन के लिए अनपेयर टी टेस्ट लगाएंगे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के लिए, और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के लिए साइन रैंक टेस्ट लगाएगी। और मल्टीपल ग्रुप होंगे या मल्टीपल पैरामीटर कंपैरिजन होगा तो वन वे अनोवा या बोन फेरोनिस टेस्ट लगाएगी। ऐसा टेस्ट को आपको पैरामीटर के साथ एक्सप्लेन करके थोड़ा सा डिटेल में बताना है। यहाँ पे एक स्पेशल नोट याद रखो टॉपिक के बारे में। टॉपिक इज एक्सपेक्टेड टू बी इंटरडिसिप्लिनरी। मीटिंग के मेंबर, इंटरव्यू के मेंबर एमबीबीएस के है, इसीलिए उनको आयुर्वेद में मॉडर्न आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। आयुर्वेद और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन मीन्स 2 डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन, इसे इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। डीएमआईएमएस को इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंटरेस्टेड है, इसलिए आपके टॉपिक में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आनी चाहिए, मीन्स आयुर्वेद और मॉडर्न एस्पेक्ट आना चाहिए। टॉपिक इज एक्सपेक्टेड टू बी मल्टी स्टेप। आपने एक स्टेप में टॉपिक किया है तो वो एमडी लेवल का टॉपिक हो गया। आपको मल्टी स्टेप टॉपिक लेना पड़ेगा, जैसे सेल्फ लाइफ स्टडी, एनालिटिकल स्टैंडर्डाइजेशन एंड एंटी माइक्रोबियल स्टडी, या फिर इन विट्रो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन एंड क्लिनिकल स्टडी। मीन्स आप शॉर्ट एनिमल स्टडी ले रहे हो और साथ में क्लिनिकल स्टडी, या ड्रग डोसेज फॉर मॉडिफिकेशन एंड क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ। मीन्स आप ड्रग को कैप्सूल में टैब में कन्वर्ट कर रहे हो, आचार्य ने बोली हुई ड्रग को, और उसी की क्लिनिकल स्टडी भी कर रहे हो। 1 स्टेप नहीं है, 2 और 3 स्टेप है। ऐसे मल्टी स्टेप वाला टॉपिक चाहिए। If clinical, then on a disease which actually need research। जैसे आप ले लेंगे काश, श्वास, इस पे आज बहुत सारी फार्मुलेशन डेवलपमेंट हो चुके हैं, बहुत सारी इफेक्टिव फार्मुलेशन है। ऐसे पे रिसर्च कर रहे हो तो उनको कुछ नहीं लगेगा। कोई तो भी ऐसा जिसपे नीड है, जैसे हाइपरटेंशन। आज हाइपरटेंशन के लिए ड्रग्स है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहती है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट है, इसलिए आप बिना साइड इफेक्ट वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग डेवलप कर रहे हो तो ये रिसर्च टॉपिक ठीक है। या कार्डियो प्रोटेक्टिव, हार्ट के प्रोटेक्शन वाली स्टडी है, या नेफ्रो प्रोटेक्टिव, या एंटी कैंसर, ये टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और खास बात ये है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, डायरेक्ट टॉपिक सिलेक्शन फाइनल नहीं कर रहे हो, इसलिए इंटरव्यू में आपको इंप्रेसिव टॉपिक बताना है, लेकिन उसी टॉपिक पे सिनॉप्सिस करना है ऐसा नहीं। बाद में आप टॉपिक चेंज कर सकते हो, गाइड से डिस्कस करके बता सकते हो। ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है कि इंटरव्यू में जो टॉपिक बताए वही लेना है, इसलिए इंटरव्यू में इंप्रेशन गिराने के लिए इंप्रेसिव टॉपिक बताओ, सिनॉप्सिस का उसके बाद में सोचेंगे। टॉपिक मस्ट बी नोवेल, नोवेल मीन्स न्यू, उसके जैसा 60, 70, 80% सिमिलर टॉपिक हुआ नहीं चाहिए। डीएमआईएमएस एक्सपेक्ट करती है कि आपका टॉपिक कंप्लीटली मीन्स 100% न्यू हो। अगर आपका टॉपिक मोस्टली सिमिलर है दूसरे टॉपिक से तो आपकी सिलेक्शन चांसेस कम हो जाएगी। रिसर्चर मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन एम, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, previous research, what is new in the research scope, probable implication of the topic। रिसर्चर को ये सब एक्सप्लेन करते आना चाहिए। अगर ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उनको लगता है कि रिसर्चर सोचता है, उसको लॉजिकल स्किल है, और खास करके उसको रिसर्च में इंसाइट है, खुद का आत्मज्ञान है रिसर्च में, और ऐसे रिसर्चर को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्वालिटी रिसर्च कर पाएगा, इसलिए आपकी रिसर्च, आपकी सिलेक्शन पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव रहेगा। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू, ये सब कब पॉसिबल होगा? जब आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप बोलने में कितने भी एक्सपर्ट रहे, फिर भी हमेशा ये अच्छा ही रहता है कि कुछ प्रैक्टिस कर लो।
इस प्रैक्टिस की वजह से आपका परफॉर्मेंस में परफेक्टेशन बढ़ जाएगा। और ये बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट, राइट डाउन क्वेश्चंस। ऊपर जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो क्वेश्चंस आप लिखो एंड व्हाट यू आर गोइंग टू आंसर, और उसको आप क्या आंसर देने वाले हो ये भी लिखो। क्वेश्चंस के आंसर दिमाग में रहना और लिखना दोनों में फर्क है, और लिखने के बाद में खुद बोल के बताना इसमें बहुत डिफरेंस आता है। जो आप सोचते हो वो आप एक्सप्रेस कर पाते हो ऐसा नहीं रहता है, और यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना ही है। और एक्सप्रेस करने की फर्स्ट स्टेप आती है कि आप उसे लिखो, क्योंकि लिखते टाइम अपन रुक के सोच सकते हैं। बोलते टाइम सोचने का टाइम नहीं रहता है, बोलते टाइम आपको कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है। इसीलिए पहले लिखो, लिख के उसे पढ़ो और फिर पढ़ के उसको प्रैक्टिस करो। आस्क क्वेश्चंस थ्रो अ फ्रेंड। क्वेश्चंस आपके फ्रेंड पास दे दो, उसे पूछने के लिए बोलो। इमेजिन करो कि आपका फ्रेंड आपका इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखो कि फ्रेंड को कमिटी मेंबर एक्सपेक्ट करना है, लेकिन जब आप कमिटी के सामने रहेंगे तब कमिटी मेंबर को फ्रेंड एक्सपेक्ट करना है। अगर आप कमिटी को कमिटी एक्सपेक्ट करोगे तो प्रेशर आएगा। इसलिए कमिटी कोई न्यू है, हायर अथॉरिटी, ऐसा नहीं सोचने का। कमिटी मेंबर जैसा अपने फ्रेंड है, फैमिली है, घर में का ग्रुप डिस्कशन शुरू है, ऐसा सोच के उनके सामने बातें करनी की। लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम फ्रेंड को कमिटी मेंबर एक्सपेक्ट करो, आप पे प्रेशर आने दो। अंडर प्रेशर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो बिना प्रेशर के वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर फ्रेंड नहीं है कोई, आस्क क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आंसर देम। और आंसर देते टाइम आईने पे ध्यान रखो कि आपका चेहरे के हाव भाव कैसे रहते हैं। आप डिप्रेस तो नहीं लगते हो, अंडर प्रेशर तो नहीं लगते हो, आप जो हाथ हिला रहे हो, हैंड लैंग्वेज दे रहे हो, वो ठीक से होती है कि नहीं, इस पे भी ध्यान रखो। लैंग्वेज कैन बी यूज्ड आइदर हिंदी और इंग्लिश, बट आंसर मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज आंसर मीन्स वर्ड अरेंजमेंट और उसका फ्लो क्लियर चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली प्रेजेंटेशन न करके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस करने का उद्देश्य कि प्रेजेंटेशन एक साइडेड रहता है, लेकिन डिस्कस दोनों साइड रहता है। मैं आपको मेरे सामने इमेजिन कर रहा हूँ और फिर फ्रेंडली एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मेरे बोलने की डायरेक्शन का एक फ्लो बनाए रखने के लिए मैंने पीपीटी बनाई पॉइंट टू पॉइंट, और फ्लो की वजह से ये प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसे ही आपका ही भी बोलना प्रेसाइज तब होगा, इंटरेस्टिंग तब होगा जब आपके बात करने में एक फ्लो रहेगा। और ये फ्लो सीक्वेंस के हिसाब से लाने के लिए आपको सीक्वेंशियल लिख के वो प्रैक्टिस करके बताया, खुद से बात करके वो फ्लो क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस 3-4 टाइम्स विथ अ गैप ऑफ 10 to 15 मिनट। कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो ब्रेन में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन से कुछ मेमोरी लॉस होती है, ब्रेन में हीट बढ़ती है, और इसकी वजह से मेमोरी पे असर पड़ता है। इसलिए कंफ्यूजन बढ़ता है, और कंफ्यूजन बढ़ गया कि लोअर इमोशन सेंटर इन्वॉल्व होके वो कंफ्यूजन का कन्वर्शन डिप्रेशन में कराते। इसलिए आपको डिप्रेशन आएगा कि मैं ठीक से इंटरव्यू नहीं दे सकते। इसलिए एक बार आपने प्रैक्टिस किया, हाफ ग्लास पानी पियो, 3 मिनट का गैप लो, घर में घूमो, बातें करो, और उसके बाद में फिर से प्रैक्टिस करो। इसकी वजह से ब्रेन फ्रेश रहेगा, आपने जो इंटरव्यू प्रिपरेशन किया वो ब्रेन में अच्छी तरह से सेव होगा। डॉक्यूमेंटेशन, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सुंदर सिंह डागा सर ने पहले ही बताया है। अगर इंटरव्यू ऑनलाइन है तो डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं, लेकिन अगर वहां पे ऑन साइट है तो अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड बाय द इंस्टीट्यूट इन द ऑर्डर इन विच दे हैव बीन मेंशन्ड। सीक्वेंस वही लगाओ जो उन्होंने बताया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में या कॉल लेटर में। टेक 2 xerox copies self attested along with separate original documents. Take MD dissertation copy and certificate of any achievement. MD dissertation साथ में रखो, क्योंकि कुछ कमिटी मेंबर लिटरेचर स्कॉलर होते हैं। वो लिटरेचर स्कॉलर लोग MD थीसिस मांगते हैं और खुद देखते हैं, और देखने के बाद में उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए MD डिसर्टेशन की कॉपी साथ में चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में रखो, क्योंकि
एप्लीकेशन पे चिपकाने के लिए बोल सकते। एम टाइम पे आपके पास फोटो नहीं निकला तो इंटरव्यू प्रिपरेशन छोड़ के आपको फोटो के लिए भागदौड़ करना पड़ेगी, और इससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे इंटरव्यू में, मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और इंटरव्यू अलग से जाएगा, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंफीरियर हो जाएगा। इसलिए 2 फोटो साथ में रख लो ताकि एन टाइम पे भागदौड़ ना हो। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बोला होगा उन्होंने तो वो भी साथ में रखो। हैव होप बट डू नॉट लेट इट अफेक्ट यू। सबको लगता है कि अपना सिलेक्शन होना चाहिए, सबको आशा रहती है, ये नॉर्मल फीलिंग है, लेकिन पोस्ट लिमिटेड है, इसलिए कुछ सिलेक्ट होंगे कुछ रिजेक्ट होंगे। इसलिए आशा रखो, लेकिन उस आशा का अपने इमोशन पे असर मत होने दो, क्योंकि आशा अपने अंदर रहती है और वो ह्यूमन की नेचुरल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसे अपने पे असर होने देना या ना होने देना ये अपने कंट्रोल पे डिपेंड करता है। अगर आशा का आप पे असर होता है तो आप डिप्रेस हो सकते हो, हर्ट हो सकते हो। अगर ये अवॉइड करना है तो आशा रखो, लेकिन ये भी सोचो कि जो होगा वो देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रिमेंबर दैट सिलेक्शन इज मोस्टली पॉलिटिकल प्रोसेस and thus do not expect too much from any interview। सिर्फ पीएचडी इंटरव्यू नहीं तो किसी भी इंटरव्यू के बारे में। Those to be selected will get selected and performance and achievement rarely matters। जिनका सिलेक्शन करना है उनका ही सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में, ये एक बिटर ट्रूथ है। परफॉर्मेंस और अचीवमेंट कितने भी रहे तो भी बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस और अचीवमेंट को इम्पोर्टेंस दिया गया। मैंने मेरी लाइफ में 14 इंटरव्यू दी और 14 इंटरव्यू में से 4 गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में मैं टॉपर था और फिर भी मैं रिजेक्ट किया गया। मेरा परफॉर्मेंस अचीवमेंट हाईएस्ट थे, फिर भी मैं रिजेक्ट हुआ। नतीजा क्या? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जिन्हें सिलेक्ट करना था वो कैंडिडेट ऑलरेडी फिक्स थे, वो मुझसे पीछे थे, 4-5 लाइन्स में पीछे थे, लेकिन फिर भी उन्हीं को सिलेक्ट किया गया। सो गिव योर बेस्ट एंड लीव द फाइनल डिसीजन ऑन डेस्टिनी। फाइनल आउटकम को डेस्टिनी पे छोड़ दो, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दो, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस से आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपके साइड से आपने कोई कमी नहीं रखी है। बाकी जो होगा वो नसीब पे, नसीब में रहा तो आपको मिलेगा, नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। अब्दुल कलाम ने कहा था, एक्चुअली अब्दुल कलाम को शंकराचार्य ने कहा था कि आपके नसीब में वही आता है जो आपके लिए अच्छा होता है, आपके नसीब में वो नहीं आता है जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए जो अच्छा है वो जरूर मिलेगा। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन होता है तो मिस आपको सिलेक्शन के लिए था नसीब में और आपके लिए सिलेक्शन अच्छा है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको लिए वो अच्छा था ही नहीं, इसीलिए आपके लिए नसीब में वो नहीं आया। मीन्स बी हैप्पी इन एनी कंडीशन। थैंक यू। Thank you, Dr. Dheeraj Singh Rajput, for a very wonderful and nice lecture. Your lecture is always impressive, and Dr. Dheeraj Singh Rajput is a very popular for our team. So now, as per Dr. Dheeraj Singh Rajput, I will show you the seat distribution. If you see my screen, I think, yeah, okay, yes. Yeah, is my screen visible to all of you? Are you seeing my screen? Hello? Are you seeing? Yeah, screen is visible to all? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. This is a table showing that provisional vacancy in all subjects across all the faculties in the Datta Megi Institute of Medical Sciences. This notification was released on July 2021. So here you can see for the faculty of Ayurveda, there is a Sanita Chidan for 2 seats for the PhD, Rachna Sharir 1, Kriya Sharir 1, Rashastra 1, Reogun, Agatantra Rognidan 1, Swastvarth 1, Srirog Prasuti 1, Komar Bhritte for there is a 3 seats, Kai Chikitsa there is only 1 seat, Panchakarma 2 seats, Shalyatantra 1 and Shalakyatantra 1 seat. Near about hardly 14, 15, 17, 18, 20 seats are available, but this may be changed because as the guide are available and the professorship available,
this can be changed. Professor may take the 6 student up to maximum 6 student, or sometime associate professor if they have the vacant seat, then this may be a change. So thank you, Dr. Dheeraj Singh Rajput, for very nicely elaborating presentation. So now I will just move the what exactly. I think someone is disturbing. Okay, okay. So what is the DRC presentation? I will show you now. So if you are going to prepare your topic, then this is, I think please mute yourself. Someone is mic is open. Okay. So if you are going to prepare your protocol, then you have to follow this protocol for the before interview committee or the departmental research committee. Here you can write the title, and this will be later. You can after confirming your guide, but whatever the and consider these finance criteria while selecting your topic. If you are going to, or if you have selected already a topic for them, then that topic should be feasible, in terms of number of patients you are getting, the treatment cost and duration for the particular disease or disorder. So this is the finance criteria applicable for the selection of the PhD topic. So you must consider about this finance criteria. That topic is also should be interesting, as per Dr. Dheeraj was telling that it should be interested to guide self and other also. If your topic is boring and quite sometimes it may not be selected by the ethical committee or research scientific research committee in the institution, or sometimes in interview panel also. So that topic should be interested. For example, just like if you are taking some immunity build drugs, and you are finding some drugs which will act on virus infection, protection of virus like COVID virus. So such kind of interesting novel topic you have to select. That novelty should be in after presenting your topic to before interview committee, they will ask this question definitely. What is the novel in this topic? What is new in this topic? What is implication of this topic in related to community health or sometimes public health? They will ask. So your topic should be novel in nature. That should be ethical, should not harmful to the participant, those who will participate in that study. And it should be relevant to your subject. Whether you are suppose you are a postgraduate in cerebral prosody, the topic should be related to that, related to your specialty. Either maybe Panchakarma, Kaya Chikitsa, Shalak, whatever it may be. So the topic should be related to your specialty. Otherwise, sometimes they may take objection that your topic is not related to your specialty. They will suggest you change your topic. So take care about that thing also. And another is a socially relevant, means it is applicable or useful for the public health issue. So take care about this finance criteria. And after submitting, means after selecting, getting into PhD, you have to submit a plagiarism report of your protocol. EC approval, this is general. Dr. Dheeraj was telling that research gap analysis. While you are writing a research gap analysis, university has given some particular guideline. If suppose you are finding some article, then you mention the title of article, author name, year of publication, particularly what research was done in by concerned author, what was the conclusion of that author, and remarks of the scholars. What remaining, as like Dr. Dheeraj was telling, what is remaining behind in that research, you have to present in such a tabular form while you writing the research gap analysis. And research question you also need to write while designing hypothesis. There are two types: null hypothesis, alternative hypothesis, aim, objective, material and methods. You have to give the details about whether it may be clinical, non-clinical, or annual study, including all inclusion criteria, data analysis method, instrumentation will be used in the research, or sometimes it may be assessment criteria for a particular disease before and after treatment. If suppose it is animal study, then that protocol you have to given here in details. So detailed methodology you need to write even before this interview committee. And methods with justification, whatever the method you are taking for your research proposal, each method you have to justify that.
And sample size estimation. If suppose you are going to conduct any randomized clinical trial or sometimes prevalence study or case control or cohort study, you must have to justify or you must have to calculate the sample size in with appropriate formula and with the previous data. So data analysis statistical method you have to mention. Scope and implementation of your proposed study. If you have designed that study, then what is the scope or what is its implication of your study you have to mention, and even you have to mention the translatory component after completing your study. What will be the what in what way it is useful to the community, it is useful to overcome the public health issues. You have to mention in the translatory component. And publication plan. If you are going to publish this prior publication or after completion of the data you are going to publish, then you have to mention what is the publication plan. Gantt chart you have to mention exactly flow of study, how you are going to conduct that study. This is just a brief about the DRC proposal by the Datta Megi Institute of Medical Sciences. So now I would like to Dr. Chetan Gullane to elaborate the various study design in brief. And after that, we will have a discussion about the various questions by the participants. So Dr. Chetan, are you ready? Thank you, Dr. Sundar. Yes, welcome. Just a minute. Yes, okay, no problem. Is the screen is visible? Hello. Yes, Chetan, yes. Yes, screen is visible. Yes, you are audible. Myself, Dr. Chetan Gullane. I'm MD PhD from Jamnagar. And today's important topic is study design research. It is a very important topic when you are going to plan any study. Generally, we plan clinical trials only. In non-clinical subject, we plan some observational studies. Before planning any study, you should know the current scenario about the study design. So we will discuss about that. So what is research design? The research design is a set of methods or procedures used in the collecting and analyzing measures of variables specific in the problem research. Research design is a framework that has been created to find answer of research questions. तो जब भी हमको कोई रिसर्च प्लान करना है तो वी हैव टू मेक द फ्रेमवर्क फर्स्ट. जैसे हम कोई चीज करना चाहते हैं तो उसके पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं. तो उसको वही हमको पॉइंट्स जो है, जब भी आपको थीसिस सबमिट करना है, सिनॉप्सिस सबमिट करना है एमडी या पीएचडी का, तो बिफोर दैट यू हैव टू प्लान आउट द वर्क. हम क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करना है, we have to plan out. That's why I called it research design. So these are the some steps. Already we have know about these steps. तो सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम डिस्कस करना है. सबसे पहले ऐसा प्रॉब्लम लो जो बर्निंग प्रॉब्लम हो. ठीक है. तो जैसे अभी कोविड का चालू है, तो कोविड पे आप कोई रिसर्च ले सकते हो, सिंगल ड्रग ले सकते हो या फिर सिंगल फॉर्मुलेशन ले सकते हो. इवन यू कैन प्लान आउट दी सम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ऑल्सो. ठीक है. तो यू कैन प्लान आउट अगर इसके साइड इफेक्ट में क्या हुआ है, कोविड के साइड इफेक्ट में क्या हुआ है, किसके कारण क्या इफेक्ट गिरे हैं, तो यू कैन आल्सो फॉर्मुलेट सम ऑब्जर्वेशनल स्टडी आल्सो. देन यू हैव टू फाइंड आउट सम लिटरेरी रिव्यू ऑफ दैट इन आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न आल्सो. देन रिसर्च प्रॉब्लम को जो हाइपोथेसिस है, रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, ये आपको डिफाइन करना है. देन you have to plan the specific objective. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्टडी के एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा. देन स्टडी डिजाइन कौन सी है, ऑब्जर्वेशनल है या एक्सपेरिमेंटल है. सैंपल डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्टली कंक्लूजन. दिस आर द मेन जो है स्टेप्स है. कोई भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, कोई भी हो, तो इसके मेन स्टेप्स जो है, ये दीज आर द मेन स्टेप्स. तो इन दिस स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट another, that is research design.
अभी रिसर्च डिजाइन कैसे करना है, क्या लेना है हमको, क्लिनिकल स्टडी लेना है या प्री क्लिनिकल स्टडी लेना है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी लेना है कि इंटरवेंशनल स्टडी लेना है, इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। ऑल द ऐसा नहीं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्लिनिकल स्टडी लूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट जो पर्सन है वो भी क्लिनिकल स्टडी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट नॉन क्लिनिकल स्टडीज को है उतना ही सेम इम्पोर्टेंट नॉन क्लिनिकल स्टडीज और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को है। तो ऑन द बेसिस ऑफ phases of trial we can define as the preclinical trials or clinical trials, all the or qualitative research or quantitative research, or observational research or interventional research, or we can also describe like nature of the study or descriptive research or analytical research. We will see that next study. So main type जो है research के, this is experimental trials and observational studies. तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो होती है उसमें ज्यादा करके हम रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। इसके दो टाइप्स है एक्सपेरिमेंटल के, एक नॉन रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रैंडमाइज। तो देखेंगे बाद में हम क्या है इसका रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं क्या है। एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आल्सो डिफाइन एज टू टाइप्स में आता है, एनालिटिकल स्टडी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एनालिटिकल स्टडी में हम लेते हैं कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडीज, एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स। So these are the basic classification of clinical trials. So what are the observational studies? In observational studies, researchers observe but do not intervene. But observational study can detect the correlation between the outcome and test variables. तो इसमें हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी रहते हैं, जैसे हमने अगर कोई कॉज है उसके कारण कोई डिजीज हो रहा है, तो वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट। आपको वो सिम्टम्स है जो भी है उसके टाइम टू टाइम नोट डाउन करना है, तो आपको उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं देना है, ठीक है। तो दीज आर द कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशनल स्टडीज? इट इज मेनली फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज डिजाइन। जो भी डायग्नोस्टिक स्टडी डिजाइन है मोस्टली ऑब्जर्वेशनल स्टडीज रहती है, या फिर प्रिवेलेंस निकालना है, या फिर बहुत से जैसे रिलेशनशिप निकालना है कोई आउटकम या वेरिएबल का। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। तो एनालिटिकल स्टडी क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको आउटकम है या वेरिएबल्स है, इसमें कोई कोरिलेशन आ रहा है। वेरिएबल मींस समझ लो कोई पेशेंट है या डिजीज है, ठीक है, या पेशेंट्स है, या फिर आउटकम में क्या है कोई डिजीज आ रहा है उसको। तो डिजीज और पेशेंट का या फिर कॉज स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होता है, ये हम अगर कोरिलेशन देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तो दिस कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में क्या है, इसमें आप देखते हैं कि उसके कॉजेस क्या है, डिजीज हिस्ट्री क्या है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिजीज की वो कलेक्ट करते हैं। जैसे हम जब संहिता और सिद्धांत में ज्यादा करके डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होते हैं, इसमें हम ये डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इस कॉज के कारण ये डिजीज होगा ही, ठीक है। तो दीज आर द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडीज कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी क्या है? कोहॉर्ट्स मीन द ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और द एक्सपीरियंस विद इन द डिफाइंड पीरियड। समझ लो कई अगर 1990 में कोई बच्चे बॉर्न हुए, उनको स्पेसिफिक वैक्सीन दी गई, तब से लेकर आज तक के जैसे 2021 तक के हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उन बच्चों को, उसमें कुछ साइड इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है कोहॉर्ट स्टडी, तो ये डिपेंड अपॉन द, जैसे हम 1990 में जो 2 पेशेंट लिए गए जिनको वैक्सीन दिया गया, जिनको नहीं दिया गया, तो दोनों ग्रुप जो है इनको हमने एक 30 साल के इसमें हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया, फिर हमने देखा कि ये साइड इफेक्ट इनको मिले या ये बेनिफिट इनको मिले। तो दीज आर द 2 कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी बिगेन विद द ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट विद द सेम पॉजिटिव फैक्टर्स लाइक विरुद्धाहार। जैसे विरुद्धाहार हमने देखा कि हमको पता है विरुद्धाहार जो है स्किन डिजीज का मेन कारण है। तो हम एक स्टडी प्लान करते हैं अभी कि एक ज्यादा करके ये स्टडी जो है लॉन्ग टाइम स्टडी रहती है, कोहॉर्ट स्टडी 10 साल 15 साल 20 साल। तो हम उनको क्या करते हैं कि अगर एक पेशेंट को हमने एक विरुद्धाहार लिया, एक ग्रुप के पेशेंट को, 100 लोगों को विरुद्धाहार लेने वाले पेशेंट देखे, और 100 लोग ऐसे देखे जिनको हमने विरुद्धाहार नहीं लिया। तो 10 साल तक हमको उन्होंने ऑब्जर्व किया और हमने देखा कि किसको स्किन डिजीज हुआ है या नहीं हुआ। तो वी कैन, ठीक है। तो देखिए हमने अगर जैसे ये प्लान आउट किया हमने, ठीक है। तो एक्सपोज मीन्स जिसको हमने विरुद्धाहार दिया उनको कितने लोगों को डिजीज हुआ है,
ठीक है, ये हमको ऑब्जर्व करना है, और कितने लोगों को विरुद्धाहार 10 साल लेने के बाद भी डिजीज नहीं हुआ। और दूसरा एक ग्रुप रहेगा जिसमें हमने, जो ग्रुप जो है विरुद्धाहार नहीं ले रहा है फिर भी उनको डिजीज हो रहा है, स्किन डिजीज हो रहा है, और उनको डिजीज, और कुछ लोगों को स्किन डिजीज नहीं हो रहा है। तो दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। तो हमको आपको एक ग्रुप को ज्यादा टाइम तक जो है ऑब्जर्व करना है। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज। लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी मींस एक ग्रुप ऑफ पेशेंट लेते हैं, उसको सेम इंटरवल पे, एक स्पेसिफिक इंटरवल पे उनको ऑब्जर्व करते जाना है लॉन्ग टाइम तक। तो दिस इज कॉल्ड ए कोहॉर्ट स्टडी। तो ये है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कोहॉर्ट स्टडी का। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टडी आ सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव, जैसे हमने आज से चालू किया स्टडी, और एक 10 साल के लिए हमने प्लान किया कि हमें देखना है स्मोकिंग के कारण जो है लंग कैंसर होता है नहीं होता है। तो हम 2 पॉपुलेशन लेंगे, एक को देखेंगे कि स्मोकिंग कर रहे हैं जो अभी इस, और उनको कोई डिजीज नहीं है, बट कंडीशन ये चाहिए कि उनको अभी कोई सिम्टम्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन हमने लिया जैसे जिनको स्मोकिंग कर रहे हैं, और एक अनदर पॉपुलेशन हमने लिया जिनको स्मोकिंग नहीं कर रहे, और हमने उसको 10 साल के लिए ऑब्जर्व किया कि 10 साल के बाद कितने लोग ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर हो रहा है दोनों ग्रुप में। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव स्टडीज, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। एंड अनदर स्टडी इज रिट्रोस्पेक्टिव। अगर हमारे पास कोई, अगर हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं या फिर बिग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पे हमको रिकॉर्ड्स मिलते हैं हर पेशेंट के। अगर हमने एक पेशेंट का रिकॉर्ड लेके पीछे जाके देखा कि एक 4 साल पहले उसको क्या सिम्टम थे, 2 साल पहले उनको सिम्टम क्या थे, 5 साल पहले सिम्टम्स क्या थे, और कैसे कैसे उसको सिम्टम दिखाई दिए, तो 2 ग्रुप हम देख सकते हैं। एक ऐसे पेशेंट ले सकते हैं जिनको लंग कैंसर नहीं हुआ, उसको हम रिट्रोस्पेक्टिव दे सकते हैं, और एक ऐसे पेशेंट जो है जिनको लंग कैंसर है और हमको पीछे जाना है, देखना है कि कितने लोगों ने स्मोकिंग किया है। तो दीज आर द रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। अभी एमबी डायरेक्शनल स्टडी ऐसे है जैसे हमको लॉन्ग टाइम बहुत से ड्रग का स्टडी देखना है। जैसे अभी हमने कोई भी वैक्सीन लिया, अगर वैक्सीन का देखना है हमको, जैसे जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन हमने अप्रूव दे दिया WHO ने 1 साल में, लेकिन वैक्सीनेशन का मिनिमम 5 से 10 साल तक लगता है कोई वैक्सीन अप्रूव होने के लिए, बिकॉज दे डू सम दी स्टडीज। हमको देखना है कि वैक्सीन देने के, जैसे इसमें अभी क्या करना है आपको, अपने पास टाइम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं दोनों स्टडी। मतलब हम ऐसे पेशेंट लीजिए जिनका हम पिछले 5 या 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, और उनको सेम फिर हम 5 से 10 साल आगे ऑब्जर्व करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एमबी डायरेक्शनल कोहॉर्ट स्टडी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी इन द टुडे जनरेशन। तो अभी इसमें जो वैक्सीन वाला है या फिर जो भी हम कोई भी कोरिलेशन निकालते हैं, जैसे स्मोकिंग के कारण हो रहा है, नहीं हो रहा है, अल्कोहल के कारण हो रहा है, तो इसमें हर एक का प्रोज एंड कॉज है। जैसे ये है रिट्रोस्पेक्टिव जो है, इट इज, अगर नया कोई कॉज है, तो मतलब कोई इमर्जिंग एक्सपोजर आ रहा है, तो इसमें हमको रिट्रोस्पेक्टिव जो अप्रोच है वो यूजफुल नहीं होगा, इसलिए हमको प्रोस्पेक्टिव अप्रोच ही लेना पड़ेगा। और इसमें इम्पोर्टेंस फिर ये है कि जो रिट्रोस्पेक्टिव है लेस कॉस्टली है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड रहते हैं, तो हम इजीली उसको, कॉस्ट हमको लगती नहीं है। दूसरा, उसको शॉर्ट टाइम में हम एनालाइज कर सकते हैं। अभी लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव जो है उसका मोस्ट कॉस्टली भी रहते हैं, क्योंकि आपको हर पेशेंट को हर बार विजिट को बुलाना है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उनका फॉलो अप लेना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, और ये स्टडी को बहुत लंबे भी चलते हैं। तो हर एक स्टडी का जो है इम्पोर्टेंस है, और एक कुछ ये भी है। देन केस कंट्रोल स्टडी। अब इसमें देखो 2 टाइप्स है, केस और कंट्रोल। केस मीन्स जिनको डिजीज हुआ है, केस द पर्सन विद द डिजीज, और कंट्रोल मीन्स जिनको द पर्सन विदाउट द डिजीज। तो हमको पहले ही स्पेसिफिक पता रहता है कि ये डिजीज है। जैसे स्किन डिजीज वाले हम पेशेंट पहले ही ले लेंगे, और कुछ ऐसे पेशेंट लेंगे जो स्किन डिजीज नहीं है। तो दैट दिस स्टडी इज कॉल्ड एज केस कंट्रोल स्टडी। इट इज डिजाइन टू हेल्प द डिटरमाइन इफ एक्सपोजर इज एसोसिएटेड विद आउटकम। ठीक है, जैसे हमने जैसे कोई पेशेंट लिया, इनको जो सन में डेली, सनलाइट में डेली काम करते हैं, उनको स्किन डिजीज रैशेस का कितना प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने ऐसा डिजाइन किया, तो एक्सपोजर कितना मिल रहा है उनको, हमको ऑलरेडी हमारे पास पेशेंट है। तो ऐसे भी पेशेंट है जो डेली सनलाइट में जाते हैं लेकिन उनको रैशेस नहीं आता है। तो इसमें आपको पहले ही ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, और उसमें आपको इट इज अ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। फिर आपको देखना है कि इसको कितने लोगों को जो है
ये हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल है, द स्टडी इन्वेस्टिगेटेड हाउ इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ठीक है, तो हमने एक स्टडी ले लिया, ऑलरेडी केसेस ले लिए इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया के, और हमने देखा कि इतने लोगों ने फ्रूट्स खाए थे, वेजिटेबल्स खाए थे, कितने लोगों ने नहीं खाए थे। ठीक है, पर एक ऐसे पेशेंट ग्रुप लिया, कंट्रोल ग्रुप, जिनको नहीं है। ठीक है, फिर उनको भी हमने देखा कितने लोगों को हुआ, कितनों नहीं। तो इट इज अ रिट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी, इज अ रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। देन अनदर स्टडी आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इट इज मोस्टली कॉल्ड एज प्रीवैलेंस स्टडी। ज्यादा करके हम अब अगर लॉन्ग टाइम स्टडी जैसे करते हैं, अगर आपको 10 साल वाली स्टडी करना है, ठीक है, समझ लो आपको कोहॉर्ट स्टडी करना है या फिर लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी करना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉज लेके तुरंत उनको चालू कर देंगे। आपको पहले कुछ प्रीवैलेंस स्टडी करना पड़ेगा, कुछ शॉर्ट टर्म स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टाइम स्टडी जो है कर सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी जैसे है, ज्यादा करके प्रीवैलेंस स्टडी, एक सेट ऑफ टाइम पे आपको डिफरेंट ग्रुप लेना है। जैसे आपने देखा एक ग्रुप जो है स्मोकिंग कर रहा है, एक ग्रुप जो है बी ग्रुप जो है, सेकंड ग्रुप जो है वो अल्कोहल ले रहा है, थर्ड ग्रुप जो है वो टोबैको खा रहा है। तो आपने एक टाइम पे देख लिया कि तीनों में से कौन से पेशेंट जो है जिनको लंग कैंसर होने की ज्यादा संभावना है। तो you will get the idea in cross sectional study, you will get the idea कि आप प्लान स्टडी कर, जैसे लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी आपको प्लान करना है तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं। बाद में फिर आप जब भी लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी प्लान करेंगे, जैसे स्मोकिंग लेके आपने लॉन्जिट्यूडिनल प्लान किया, तो आपको जो है इसमें मिलेगा कि ओवर टाइम आपको उसको फिर फॉलो अप करना है। हर साल में 6 महीने में उसका बॉडी चेकअप करना है, लंग कैंसर है या नहीं है, एक्सरे लेना है, सीटी स्कैन करना है। तो आपको लॉन्ग टाइम तब जो उसको ऑब्जर्व करना है, फिर आपको स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको आउटकम निकालना है कि क्या उसका स्टडी है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर retrospect representation of sub subject at specific time। तो नेक्स्ट है केस सीरीज और केस रिपोर्ट। अभी आप जब भी आप लॉन्ग बड़ी स्टडी करते हैं तो मोस्टली जो कोहॉर्ट स्टडी हो, मल्टी सेंटर स्टडी रहती है, 5000 वेरिएबल्स या 10,000 लोग या ज्यादा, उससे भी ज्यादा लोग हम मल्टी सेंटर स्टडी कर सकते हैं। बट आप सिंगल केस सीरीज और केस रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बट थीसिस के लिए नहीं, बट इवन इन पब्लिकेशन फॉर आर्टिकल यू कैन मेक द सिंगल केस रिपोर्ट ऑल्सो। आप एक पेशेंट लेके उसका फॉलो अप ले सकते हैं, एंड यू कैन सी द दिस केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स आल्सो इन सिंगल पेशेंट। The most important study is randomization. Randomization means क्या? The researcher decided randomly as which participant in the trial receive the new treatment and which will receive the placebo. जब भी हम कोई भी स्टडी प्लान करते हैं तो क्या रहता है हमारे दिमाग में कि ये पेशेंट हमारा पहचान का है तो इनको अच्छी मेडिसिन दे दो, ये पेशेंट हमारा नहीं है तो इनको प्लेसिबो दे दो। तो इससे क्या कि स्टडी जो है उसके एरर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो हम जो है बायस बोलते हैं इन दिस टर्मिनोलॉजी। तो आपको बायस आपको नहीं करना है कोई भी पेशेंट को, या फिर कोई क्लिनिकल ट्रायल में आपको बायस नहीं करना है, इसलिए हम रैंडमाइजिंग करते हैं। हम तो रैंडमली पहले ही डिसाइड कर रखेंगे कि ये जो पेशेंट आने वाला है इसको हम ट्रीटमेंट देंगे या फिर इनको प्लेसिबो देंगे। दैट इज कॉल्ड एट रैंडमाइजेशन। तो इसमें क्या है कि इसमें भी आप कर सकते हैं ब्लाइंडिंग। सबसे पहले है ब्लाइंडिंग। आप कोई भी स्टडी करते हैं तो आपको आप टाइटल में लिख देखते हैं मोस्ट ऑफ द सिंगल ब्लाइंड स्टडी ऑफ दिस कंट्रोल ग्रुप, दिस डबल ब्लाइंड स्टडी। तो ब्लाइंडिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट इन लाइक सम कंडीशन, जैसे पंचकर्मा है इसमें ब्लाइंडिंग नहीं हो सकती, लेकिन जो मेडिसिन है इसमें आप ब्लाइंडिंग कर सकते हैं। तो सिंगल ब्लाइंड स्टडी क्या रहती है, इसमें क्या रहता है, इफ ओनली द पार्टी और आइदर patients or study physician is blinded to the treatment। तो इसमें क्या है कि जो भी आप पेशेंट को दे रहे हैं आपको पता रहता है क्या देते हैं, लेकिन पेशेंट को पता नहीं रहता है वो प्लेसिबो है या मेडिसिन है। ठीक है, उनका सेम कलर रहेगा लेकिन आपको पता रहेगा कि इसको क्या दे रहे हैं हम। चूर्ण, जैसे 2 चूर्ण दिए हमने, एक का सिर्फ व्हीट पाउडर दिया, एक को गुड़िल सत्व दिया, दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको पता है क्या है, पेशेंट को नहीं पता है।
तो इट इज कॉल्ड एज सिंगल ब्लाइंड स्टडी। मोस्ट ऑफ द जो है सिंगल ब्लाइंड है। डबल ब्लाइंड स्टडी क्या रहता है कि आप जो भी है मेडिसिन आपको भी नहीं पता रहेगा कौन से ग्रुप में क्या दे रहे हैं, बिकॉज इसमें आप क्या करते हैं, पहले ही आप जो है फार्मेसी को बता देते हैं कि हमको डबल ब्लाइंड स्टडी करना है, तो वो क्या करेंगे, सेम पिल्स बनाएंगे, दोनों मेडिसिन की सेम पिल्स बनाएंगे और उसको लेबल देंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कौन से ग्रुप में मेडिसिन है, कौन से ग्रुप में आपको प्लेसिबो। सेम कंडीशन पेशेंट के भी होगी, जब वो मेडिसिन लेगा तो उनको उसको पता नहीं होगा कि वो मेडिसिन ले रहा है या प्लेसिबो ले रहा है। तो इट इज कॉल्ड एज डबल ब्लाइंड स्टडी, मतलब आपको भी नहीं पता है और पेशेंट को भी नहीं पता है। व्हाट इज ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी? और इसमें और थोड़ा एडवांस है, इसमें जो है जो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो डाटा एनालिसिस रहता है या जो फिर असेसमेंट ऑफ रिजल्ट करता है, उसको भी नहीं पता रहता है कि वो उसमें कौन से इसमें ड्रग है या नहीं है, ठीक है। तो रैंडमली निकालेगा कि ये ग्रुप में आया, बी ग्रुप में नहीं आया। जब रिवेल होगा लास्ट में, सब डेटा फिनिश होने के बाद रिवेल होगा कि ये ग्रुप जो था ये मेडिसिन का था, ये तो प्लेसिबो का था। तो इट इज कॉल्ड ए ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी। Also, you can do the simple some randomization techniques also there. आपको randomization कैसे करना है, तो generally we use for tossing the coins। मतलब क्या है कि आपको coins लेके toss करना है हर बार patient को। तो इसमें आपको सिर्फ टॉस करना है, हर बार टॉस करना है। जैसे हेड आया तो हम बोलेंगे ए ग्रुप में लेंगे, टेल आया तो हम देखेंगे कि इसको बी ग्रुप में लेना है। तो आपको डिटरमाइन कर लिया आपने, तो हम हर बार टॉस करेंगे, पेशेंट आएगा तो उसके हिसाब से हम उसको ग्रुप में लेंगे, तो उसके हिसाब से जो है हमारा बायस जो है वो कम होगा। या फिर हम वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट द ब्लॉक रैंडमाइजेशन, ब्लॉक रैंडमाइजेशन। इसमें क्या रहता है कि ब्लॉक्स बना के लेते हैं, ए बी 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 बी, ये कंप्यूटराइज जो है इसके हिसाब से हम ब्लॉक बना देते हैं 4 पेशेंट के। और फिर हम उसमें डिसाइड करेंगे कि पहला ब्लॉक में पेशेंट आया तो पहले उसको मेडिसिन देंगे, प्लेसिबो देंगे। तो ऐसे हम ब्लॉक्स बना के भी ले सकते हैं, कंप्यूटराइज ब्लॉक मेथड आती है। या फिर हम स्ट्रैटिफाइड जो है रैंडमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो सब ग्रुप्स है, इसमें हम क्या है, जैसे एज ग्रुप हमने डिसाइड किया कि ये या 5 to 10 एज ग्रुप में जो पेशेंट आएंगे उनको मेडिसिन देंगे, या फिर मेल पेशेंट आएंगे उनको मेडिसिन देंगे, फीमेल पेशेंट को प्लेसिबो देंगे, या फिर कुछ कैटेगरी वाले पेशेंट जो है उनको हम ये देंगे। जैसे कैटेगरीज फाइंड करके हम अगर उसको प्लेसिबो या कंट्रोल ग्रुप डिवाइड करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन। So these are the some types of. I think it is hang. Just a minute. Okay, Dr. Chetan, no problem. जस्ट हो गया, फिनिश हो गया, लास्ट स्लाइड है, सिर्फ ये हम देखते हैं। तो फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एंड आयुर्वेदिक ड्रग्स। तो जनरली हम जैसे हमने देखा प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, जो भी WHO के गाइडलाइंस हम देखते हैं या फिर रैंडमाइजेशन। तो आयुर्वेदिक ड्रग के लिए भी जो है CCRS इसने प्लानिंग किया है, जैसे 4 स्टेजेस है। फर्स्ट इज ह्यूमन फार्मेकोलॉजी फेज 1, इसमें हम हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं और इसमें हम ज्यादा करके मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज और अर्ली मेजरमेंट ऑफ ड्रग एक्टिविटी ये देखते हैं। सेकंड जो है फेज, इसमें हम थोड़े ज्यादा पेशेंट लेते हैं और इसमें हमें देखना है थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स। इसमें हम शॉर्ट टाइम जो कॉमन साइड इफेक्ट है या रिस्क एसोसिएटेड विद ड्रग्स है ये हमको देखना है। देन कंफर्मेटरी ट्रायल्स, थर्ड ग्रुप जो है, इसमें हम ज्यादा पेशेंट लेके इसमें सेफ और इफिकेसी ऑफ ड्रग मेनली ये देखते हैं। और पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल मींस फेज 4, इसमें मार्केट में जाने के बाद फिर भी हम उसको ड्रग को जो है वो असेस करना है कि क्या साइड इफेक्ट हमको दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे। तो दीज आर द मेन 4 फेजेस ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। और इसके पहले हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर सकते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ज्यादा करके एनिमल एक्सपेरिमेंट रहते हैं, विट्रो और विओ, जो लेबोरेटरी में होते हैं या फिर जो एनिमल्स में होते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो दीज आर द सम क्लिनिकल ट्रायल्स, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन द टाइप ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। ज्यादा करके हमने WHO में देखा या वाइस्टल में देखा है, वो आयुर्वेदिक ड्रग के लिए नहीं है। तो ये जो है ये मेनली आयुर्वेदिक ड्रग के लिए जो है ये 4 फेजेस जो है हम ये मार्केट में फॉलो करना चाहिए।
Thank you, Dr. Sundar, for giving me chance. It is very short time actually. ये जो भी टॉपिक्स है इनके लिए काफी थोड़ा टाइम चाहिए, तो we can explain it very much and we will go in the detail in future. Thank you. Yes, thank you, Dr. Chetan, for very nice explanation. And now I will just give some guideline to all the participant as per Datta Mege Institute of Medical Sciences notification. They are conducting interview for the all eligible participant. The interviews will schedule from the 15th of November 2021 from 11 a.m. onwards. Some people may face on 15th or some people may on 16th. And the mode of conduction of interview will be online virtual mode through Zoom. The password will be provided by 14th of November. So our advice is to be on time, keep good Wi-Fi range for internet, keep your protocol ready for presentation, keep your laptop or mobile headphone fully charged and be confident, and try to sharing the file from Zoom platform so that you will most of people will familiar from that, but still you try to share that and to try to present in front of your friends so that you will be confident while presentation. And our coming event will be how to get a fellowship for PhD. It will be conducted in coming month, December 2021. And we are also going to conduct the career guidance program for graduation, post-graduation, for BNS, for MDMS, as well as for PhD scholars, as well as the PhD completed candidates in December 2021. That is in coming months. So thank you. So we will now question answer session. So whatever the question from the participant, all experts are here. So you can ask the questions. So all the participants. If you have any question regarding the how to face the PhD interview, how to select the topic, and I have also provided the link here. You can find the synopsis design protocol. That was a full day training program, and in that program you will find all the scientific method for the synopsis preparation. And on next day we have suggested some titles to the participant, those who were appeared for the MHS PhD. And every subject we have discussed various topics, and in that course we have also provided the some previous titles. If it is permitted, I will share the screens. You can show that I will share. 1 second. Meanwhile, you can ask the questions. Yeah, this is our website, that is iridaexam.com. So you will find here there are 3 to 4 courses. This 15 days before we have conducted plagiarism, and this is a synopsis topic suggestion program. You can have a glimpse of this course here. So on first day we have conducted topic suggestion, and second day synopsis writing guidance. And in that you will have content various particularly MHS circular, synopsis pattern by MHS, Gantt chart format is given, synopsis orientation program. There are 2 videos are there, and what is the structure of synopsis, what are the annexure, EC report. Here we have also provided the accepted title of synopsis subject wise of MHS as well as the other university. So you will find here the list of synopsis from 2008-9 in Maharashtra Institute of Health Science, list of approved synopsis from other university, also list of synopsis of Datta Mege Institute of Medical Sciences, Wardha also we have put there, from D.Y. Patil, Amrita School of Ayurveda. And here we also put the case record performance, scientific method of writing, and that was a live synopsis guidance program. Here we have also added some video here. So you can have this program if you want to, or any participant want to. This is a full day program. The recording is also available on this platform. So if you have any question, then you can ask. Otherwise, we will have a vote of thanks now. Any question, please? Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes. Myself, Dr. Jyoti Agrawal. Okay, ma'am. Welcome. सर जब हम एमडी में थे तो एक बघेल की बुक आती थी
Yes. या कहीं से हमारे पास लिंक रहती थी कि कौन कौन से पहले टॉपिक हो चुके हैं, कहीं हमारा टॉपिक रिपीट तो नहीं है। Yes. तो इस तरह से सर पीएचडी में हमारा प्रीवियस रिसर्च वर्क क्या हुआ है, इसके लिए कोई बेस्ट लिंक या कुछ बुक्स या फिर पीडीएफ आप जैसे suggest मैंने कर- अभी मैंने वेबसाइट बताया मैडम, जो आयुर्वेदा एग्जाम का जो है, उसमें सिनॉप्सिस गाइडेंस प्रोग्राम में हमने काफी सारे यूनिवर्सिटी के टाइटल ऑलरेडी वहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। ओके और ज्यादातर तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस में पीएचडी के जो स्टूडेंट है इनरोल है। इवन हाँ। दत्ता मैगी के भी जो है, जो ऑलरेडी जो पीएचडी के जो टॉपिक हो चुके हैं, वो हम लोगों ने हमारी वेबसाइट पे जो प्रोग्राम अभी मैंने दिखाया है वहाँ पे अपलोड किए हैं। यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर। अदरवाइज उस प्रोग्राम जो है, तो हमने वो डेटा लिटरेचर रिव्यू कैसे करे उस प्रोग्राम में हमने दिया है वहां से कि कहाँ कहाँ से वो कर सकते हैं। इवन हमारी जो वेबसाइट है आपको मैं बता दूंगा, तो वहाँ पे आप एमएचएस के इसमें भी जाके आपको जो गाइडलाइन है, तो वहाँ पे सभी गाइडलाइन आपको मिलेंगे। ये हमारा वेबसाइट है, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी जी, यस सर। ये आयुर्वेदा रिसर्च करियर एकेडमी का वेबसाइट है। यहाँ पे अगर रिसर्च में जाएंगे आप, तो you will find all the guideline for study reporting. For example, randomized clinical trial, you will have the consult guideline, observational case report. सब अगर if you click the randomized consult guideline, you will find a PDF that how you can conduct randomized clinical trial. So यहाँ पे अभी हम लोगों ने सबके सब गाइडलाइन दिए हैं. Every guideline we have provided here. Even if you want to qualitative research, systematic reviews, even here we have put the synopsis guideline for MHS also. Actually, there is no such guideline given by the Dutta Magi Institute, but MHS has given guideline. Then we have there, because the guideline will be same in the any university. There is no any such any change. And for as far as the previous are done, here we have given the link for the synopsis previous are done in MHS. If you click this link, then you will find the titles. Suppose here this is the database prepared by the MHS research database. Suppose here if you type any, just for example I have tried for Amvat, and what is just for example Amvat का मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँ, तो जैसे कि Amvat में टाइप करूँ तो ये that university will provide the title. You can see first title is study of efficacy of rational equality in Amvat facial reproductive matter. So this MHS you will provide all the title. Even there is another software Dhara. This all we have covered in our synopsis orientation program. Yeah, this is one kind of, you can find some articles or the previous study. I think it is just article open. Actually, there is a website of Dhara also, digital helpline, that you can find. There are some other PubMed and Ayush research portal is also there. For Ayurveda, there is a digital Ayurveda research, digital helpline for Ayurveda research article. Okay. So, yeah, this one. If you click on this Dhara online, and you will find some article here. Yeah. Now, is it? Are you looking this? Seeing Dhara. This is particularly for articles on Ayurveda research. So you can search here. You just put here, and you will find the articles or previous work done. Okay. This is the MHS data database. This is the Dhara. And for detail, you can go our program, and you will find there. Okay, sir. Thank you, ma'am. Sir, I have qualified the Datta Megi written examination, and now I will going to conduct the online interview. Yes. Best of luck, ma'am, for that. Thank you. So topic will be decided before the interview, and we'll have to present. Yes, ma'am. Most of time that interview will be depend on your topic presentation. Means 80% interview will be on which topic you are going to select. And someone is asking that whether you are going to expand your PG research, particularly means it should not be because you have to take new topic rather than expanding your postgraduate research. You have to choose a new topic. That will be better. Yes. Okay, sir. Thank you so much. Yes, thank you.